নমস্কার। চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের দ্বিতীয় এমসিকিউ ক্লাস। আজকের প্রথম কোশ্চেন কি আছে? হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট অর্ডার অফ ড্র ফর ব্লাড কালেকশন ইউজিং ইভাকুয়েটেড টিউব? অপশন এ তে কি আছে? রেড, গ্রিন, ব্লু, ল্যাভেন্ডার। অপশন বি আছে ব্লু, রেড, গ্রিন, ল্যাভেন্ডার। অপশন সি रेड, ब्लू, ग्रीन, ল্যাভেন্ডার। डी আছে ল্যাভেন্ডার, रेड, ब्लू, ग्रीन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ब्लड कलेक्शन का ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पूछा है, तो उसमें जो आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा जो बी होगा। इसका जो सीक्वेंस था, पहला था आपका ब्लड कल्चर बोतल के लिए, मतलब येलो टॉप जो होता है वो। उसके बाद ब्लू, रेड, फिर ग्रीन, फिर लेवेंडर। ब्लू है, हम लोग ब्लू को हम लोग यूज करते हैं ये कोआगुलेशन स्टडी के लिए। रेड है क्लॉट एक्टिवेटेड मतलब सीरम ट्यूब। ग्रीन है हेपारिन ट्यूब। और लेवेंडर है ईडीटीए। और इसके बाद हम लोग जो यूज करते हैं सुगर वायल, जो सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं वो वाला वायल। এর সঠিক অ্যান্সার হবে বি নম্বর অপশন। যে অর্ডার অফ ড্র আছে তার সবার প্রথমে আমরা এক নম্বরে আমরা নিই ব্লাড কালচার বোতল, দু নম্বরে কোয়াগুলেশন স্টাডির জন্য ওই বোতলে, তিন নম্বরে ক্লট অ্যাক্টিভেটেড বোতলে, চার নম্বর আমরা নিই হেপারিন টিউবে, পাঁচ নম্বর আমরা যেটাই কালেকশন করি সেটা হচ্ছে ইডিটিএ টিউবে, আর ছ নম্বরে আমরা সবার লাস্টে যেটা কালেকশন করি সেটা হচ্ছে সুগার ভায়োলে। तो इसका सही आंसर क्या होगा ना, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस द प्रेफर्ड एंटीकोआगुलेंट इज। इसमें बोल रहा है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए कौन सा एंटीकोआगुलेंट चूज करेंगे? আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিসের জন্য কোন ধরনের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টকে আমরা ইউজ করে থাকি? এক নম্বর অপশন কি আছে? ইডিটিএ, দু নম্বর পটাশিয়াম অক্সালেট, তিন নম্বর হেপারিন, চার নম্বর সোডিয়াম फ्लोराइड। ইডিটিএ हम लोग কিসে কিসে ইউজ করে? ইডিটিএ মেনলি আমরা হেমাটোলজিক্যাল টেস্টের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি। আর কিছু বায়োকেমিক্যাল টেস্ট আছে যেমন HbA1c, ACTH, PTH, এইগুলোর জন্য আমরা ইডিটিএ ইউজ করে থাকি। পটাশিয়াম অক্সালেট কি কি জন্য ইউজ করি? পটাশিয়াম অক্সালেট ও হেমাটোলজিক্যাল কিছু টেস্টের জন্য ইউজ করে থাকি। হেপারিন যে আছে এটা আমরা কিসের ক্ষেত্রে ইউজ করি না, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিসের জন্য আর অসমোটিক ফেজিলিটি টেস্টের জন্য ইউজ করে থাকি। সোডিয়াম ফ্লোরাইড কেন ইউজ করা হয় না, আমরা সুগার ভাইলে সোডিয়াম ফ্লোরাইড ইউজ করি। এই সোডিয়াম ফ্লোরাইড কি করে না, গ্লাইকোলাইসিসের একটা এনজাইম এনোলেজ যেটাকে ইনহিবিট করে, তার ফলে আমরা যে কালেক্ট করেছি ব্লাডটা তার মধ্যে গ্লুকোজের ভ্যালু আর কমে না। ওই গ্লাইকোলাইসিস ইনহিবিট করে দেয়, রেড সেল যতটাই গ্লুকোজ ইউটিলাইজ করে সেটাকেও ইনহিবিট করে দেয়, তার জন্য আমরা सोडियम फ्लोराइड यूज करी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आर्टेरियल ब्लड गैस के लिए हेपारिन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फंगाई सच एज यीस्ट एंड मोल्ड इज कॉल्ड। सब एक नंबर ऑप्शन है माइकोलॉजी, दो नंबर और फाइकोलॉजी, तीन नंबर प्रोटोजूलॉजी, चौथा है पैरासाइटोलॉजी। माइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ फंगस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी बोला है। फाइकोलॉजी इसको बोला जाता है ना स्टडी ऑफ एल्गी, इसको हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। और प्रोटोजूलॉजी हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ करते हैं, उसमें उसको प्रोटोजूलॉजी बोलता है। और पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट को बोलता है, और उसके साथ उसका होस्ट का क्या रिलेशन है उसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। তাহলে মাইকোলজি দিয়ে কি বলছে? স্টাডি অফ ফাঙ্গাস। ফাইকোলজি বলা হচ্ছে স্টাডি অফ অ্যালগি। এই प्रोटोजूलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
XLD agar is characteristic by addition of which of these? বলছে XLD যে আগারটা আমরা ইউজ করি সেটা কিসের জন্য, যে কি স্পেশাল ক্যারেক্টারের জন্য আমরা ওটাকে ইউজ করি, এর মধ্যে তার জন্য আমরা কি অ্যাড করে থাকি এর মধ্যে স্পেশাল ক্যারেক্টারটা পাওয়ার জন্য। 1 নম্বর অপশন কি বলছে ব্লাড, 2 নম্বর অ্যান্টিবায়োটিক, 3 নম্বর ইস্ট एक्सट्रैक्ट, 4 नंबर लैक्टोज। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं जो XLD आगर क्या होता है। बोलो XLD आगर इज ए बोथ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया किसको बोला जाता है, जो कोई एक पार्टिकुलरली एक बैक्टीरिया को ग्रो करने देता है, बाकी दूसरा जितना बैक्टीरिया है उसको ग्रो होने नहीं देता है, उसको सिलेक्टिव मीडिया बोला जाता है। डिफरेंशियल मीडिया कौन किसको बोला जाता है, मान लीजिए एक प्लेट में 2-3 बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, लेकिन दोनों का कोई ना कोई वो मीडिया ऐसा कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के टाइम ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता है जो दोनों मीडिया को, हम दोनों कॉलोनी को अलग अलग पहचान सकते हैं, उसको डिफरेंशियल मीडिया। मतलब एक मीडिया प्लेट में 2-3 कॉलोनी अगर आएगा, सबको अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो कल्चर मीडिया के लिए। मतलब कोई कलर दूसरा दिखा है तो कोई तीसरा वाला दूसरा दिखा देगा, ऐसा करके होता है, उसको डिफरेंशियल मीडिया बोला जाता है। इसमें क्या 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 रहता है, इसमें रहता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड विटामिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक कैरेक्टरिस्टिक बाय एडिशन ऑफ द ऑफ व्हिच ऑफ द दिस, এর মধ্যে कौन सा डाला गया है जिसके चलते XLD मीडिया में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आया, मतलब जो सिलेक्टिव और डिफरेंशियल जो ये जो दो कैरेक्टर है वो आया है, उसके उसका क्या आंसर होगा, तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट होगा। इसके लिए और क्या क्या है उसमें, और क्या क्या डाला जाता है, सोडियम डिऑक्सीकोलेट डाला जाता है, वो एक सिलेक्टिव एजेंट है जो क्या करता है, इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट कर देता है। जाइलोज है मीडिया में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ये सीजेला के लिए जितना एंटरिक बैक्टीरिया है वो सारा जाइलोस प्रोडक्शन करता है, एक्सेप्ट सीजेला एक जो वो नहीं करता है। और क्या है, लाइसिन इसमें डाला जाता है। ये जो लाइसिन है इसका फॉर्मेंट कौन ना साल्मोनेला ग्रुप नहीं कर पाता है, साल्मोनेला का जो पैथोजेनिक ग्रुप है वो नहीं करता है, नॉन पैथोजेनिक ग्रुप इसको कर लेता है। इसमें और एक चीज याद रखने का जो है, XLD में इंडिकेटर क्या यूज होता है, इसमें इंडिकेटर क्या ना फिनोल रेड एज ए इंडिकेटर यूज होता है XLD में। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले बैक्टीरिया which so graph like cluster arrangement are termed, বলছে আঙুরের থোকার মতো যে অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখায় তাকে কি বলা হয়, সার্সিনা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, ডিপ্লোকক্কাস। গ্রাফ লাইক স্ট্রাকচার কে দেখায় না, স্ট্যাফাইলোকক্কাস দেখায়, স্ট্রেপ্টোকক্কাস ইন চেন এন স্ট্রেপ্টোকক্কাস ইন চেন অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখায়। আর ডিপ্লোকক্কাস মানে দুটো দুটো করে থাকবে, এর মধ্যে আছে মেনিঙ্গোকক্কাস, এন্টেরোকক্কাস, এরা ডিপ্লোকক্কাস। सार्सिना হচ্ছে মনে হয় ये ऑक्टेट फॉर्मेशन करता है सार्सिना। इसमें क्या होता है, 8 जो कॉकाई एक साथ जोड़ के ऑक्टेट फॉर्मेशन करता है सार्सिना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following do not belongs to the vitamin B complex group, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গ্রুপের মধ্যে নিচে দেওয়া ভিটামিন গুলো কে নয়। প্রথম অপশন কি আছে, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, নিয়াসিন, ফোলেট আর রাইবোফ্লাভিন। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এর মধ্যে যতগুলো ভিটামিন আছে সবাই কিনা ওয়াটার সলিউবল, এই অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড কার আর কে না, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড
এটা হচ্ছে ভিটামিন সি, ये रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। तो बी कॉम्प्लेक्स और सी ये जो है ये दोनों है क्या, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नियासिन जो है ये विटामिन बी3 है, फोलेट विटामिन बी9, बी2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। कौन बोल रहा है, कौन विटामिन बी ग्रुप कॉम्प्लेक्स ग्रुप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। নেক্সট কি বলছে, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মানে টিউবারকুলোসিস লেপ্রোসি ইজ ডিটেক্টেড বাই হুইচ অফ দিস। নিচে যেগুলো देया আছে তার মধ্যে কি থেকে আমরা টিউবারकुलोसिस इन्फेक्शन देखते हैं। नीचे दिया गया जो स्टेन है उससे किसमें से हम लोग ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी के लिए डिटेक्शन कर सकते हैं। एक नंबर ऑप्शन क्या है, एसिड फास्ट स्टेन, 2 नंबर ग्राम स्टेन, 3 एल्बर्ट स्टेन, 4 नेगेटिव स्टेन। অ্যাসিড ফার্স্ট স্টেন আমরা কিসের জন্য করি না, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস লেপ্রোসি এদের জন্য ডিটেক্ট করার জন্য। গ্রাম স্টেন আমরা কেন করি, ব্যাকটেরিয়াকে দুটো ব্রড এতে ডিভাইড করি, একটা গ্রাম পজিটিভ একটা গ্রাম নেগেটিভ গ্রুপে ডিভাইড করি। অ্যালবার্ট স্টেন কার জন্য করি না, কোয়ার্নি ব্যাকটেরিয়া ডিপথেরির কি না মেটাক্রোমাটিক গ্র্যানিউলস দেখার জন্য অ্যালবার্ট স্টেন করে থাকি। আর নেগেটিভ স্টেন করে থাকি বেশিরভাগ সময় কি না ক্যাপসুল দেখার জন্য। নেগেটিভ স্টেন কি কি আছে না, इंडियन इंक আছে, ইওসিন, নাইগ্রোসিন, এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ স্টেনের মধ্যে আছে। तो ये सही उत्तर की होगा ना, ऑप्शन ए ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोफोट्रिकस बैक्टीरिया हैव व्हिच ऑफ दिस। बोला है लोफोट्रिकस बैक्टीरिया नीचे जो दिया गया इसमें कौन सा होता है लोफोट्रिकस। पहला ऑप्शन क्या है, प्रथम ऑप्शन सिंगल फ्लैजेला ऑन वन साइड। इसको क्या बोला जाता है, जब सिंगल फ्लैजेला ऑन वन साइड होता है इसको मोनोट्रिकस हम लोग बोलते हैं। सिंगल और टफ ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ फ्लैजेला रहता है उसको एम्फीट्रिकस बोला जाता है। 2 नंबर ऑप्शन ये क्या होता है, ये एम्फीट्रिकस होता है। सराउंडेड बाय लैटरल फ्लैजेला, मतलब पूरा बॉडी में जब फ्लैजेला रहता है उसको क्या बोलता है, पेरिट्रिकस बोलता है। और टॉप ऑफ फ्लैजेला ऑन वन साइड, जब एक साइड में सिर्फ फ्लैजेला रहता है उसको क्या, लोफोट्रिकस बोला जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें या डी ऑप्शन सही होगा। এর মধ্যে ডি এর অপশনটা ঠিক হবে। সিঙ্গেল ফ্ল্যাজেলা অন ওয়ান সাইড, একদিকে যখন ফ্ল্যাজেলা থাকে তাকে তাকে মনোট্রিকাস বলে, যখন বোধ দিকে দুদিকে ফ্ল্যাজেলা থাকে তাকে কি না অ্যামফিটিকাস বলে, যখন পুরো বডিতে সারাউন্ডিং করে থাকে তাকে পেরিট্রিকাস বলা হয়। আর যখন ওয়ান একদিকে থাকে টাপ অফ ফ্ল্যাজেলা মানে ফ্ল্যাজেলার অনেকগুলো গুচ্ছ থাকে, মানে একটা দুটো তিনটে এরকম করে অনেকগুলো ফ্ল্যাজেলা একটা একসাথে এক জায়গা দিয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় কি না लोफोट्रिकस फ्लैजेला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब प्लेटलेट फॉर्म फ्रॉम सेल इन द बोन मैरो कॉल्ड एज। बोला बोन मैरो, प्लेटलेट बोन मैरो का कौन सा सेल से फॉर्म होता है। तो माइलोब्लास्ट, ल्यूकोसाइट्स, माइलोसाइट और मेगा कैरियोसाइट्स। इसमें जो है माइलोब्लास्ट बचे, माइलॉइड सीरीज जो है डब्ल्यूबीसी का मैचुरेशन जो सीरीज है उसका माइलोब्लास्ट एक सेल है उस सीरीज का, ये है इमेच्योर डब्ल्यूबीसी होता है ब्लास्ट सेल एल। उसके बाद ये जो ल्यूकोसाइट किसको बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। और माइलोसाइट ये भी माइलॉइड सीरीज का एक सेल है, ये ल्यूकोसाइट का एक इमेच्योर स्टेज है। और मेगा कैरियोसाइट ये है क्या ना, प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट से बनता है। ये बोन मैरो में एक पाया जाता है और मेगा कैरियोसाइट से
क्या ना प्लेटलेट फॉर्मड होता है। তো প্লেটলেট কি থেকে তৈরি হয়? মেগা ক্যারিওসাইট থেকে প্লেটলেট তৈরি হয়। এই মাইলোব্লাস্ট, লিউকোসাইট, মাইলোসাইট এগুলো কি না ডব্লিউবিসির এই সিরিজের, এগুলো হচ্ছে এক একটা সেল। এটা হচ্ছে ব্লাস্ট সেল, মাইলোব্লাস্ট, এটা হচ্ছে মাইলোসাইট আর লিউকোসাইট। এরপর নেক্সট কোশ্চেন কি আছে বলছে, all stain go in the presence of 66.5% NaCl and are bioscreen test positive of which of the bacteria? কি অপশন আছে? প্রথম কর্নিব্যাকটেরিয়া, দ্বিতীয় নাইজেরিয়া, 3 নম্বর মাইক্রোব্যাকটেরিয়া, 4 নম্বর এন্টারোকক্কাস। তো বায়োস্কুলিন পজিটিভ টেস্ট কে দেয়? না এন্টারোকক্কাস দেয়। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে? the average lifespan of the WBC सॉरी आरबीसी रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना दिन है? 80 से 100 আওয়ার্স, মানে 80 থেকে 100 ঘন্টা, 100 থেকে 120 দিন, 80 থেকে 100 দিন, 100 থেকে 120 আওয়ার্স মানে 120 ঘন্টা। কি উত্তর হবে? 100 থেকে 120 दिन उत्तर হবে। बी ऑप्शन होगा इसके लिए। 100 से 120 डेज होगा लाइफ स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द ग्राम पॉजिटिव कोक्काई एक्सेप्ट, इसमें बोल रहा है सारा दिया गया ग्राम पॉजिटिव कोक्काई एक्सेप्ट, उसमें कौन सा ग्राम पॉजिटिव कोक्काई नहीं है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव कोक्काई है, एंटेरोकोकस ई भी ग्राम पॉजिटिव कोक्काई है, स्टेफाइलोकोकस ई भी ग्राम पॉजिटिव कोक्काई है। ये जो निजेरिया है ग्राम नेगेटिव कोक्काई होता है, निजेरिया ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोक्काई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? आरएच नाल सेल हैव, বলছে আরএইচ নাল সেল এর মধ্যে কি আছে? আরএইচ অ্যান্টিজেন আছে, উইক ডি অ্যান্টিজেন আছে, পার্সিয়াল ডি অ্যান্টিজেন আছে, নো আরএইচ অ্যান্টিজেন। আরএইচ যে অ্যান্টিজেন সিস্টেমটা আছে এইটার জন্য আমরা কি বলি যখন ব্লাড গ্রুপ করি, ওই যে পজিটিভ বা নেগেটিভ আসে, ওই যে পজিটিভ বা নেগেটিভ আসছে ওটা আরএইচ যে অ্যান্টিজেন সিস্টেম আছে তার জন্যই আসছে। আরএইচ অ্যান্টিজেন যদি থাকে তখন তাকে পজিটিভ বলা হয়, আর আরএইচ অ্যান্টিজেন যদি না থাকে তখন তাকে নেগেটিভ গ্রুপ হিসাবে আমরা বলি। তাহলে আরএইচ নাল সেল কি বলছে? আরএইচ নাল সেল যার মধ্যে কোনো আরএইচ অ্যান্টিজেন থাকে না তাকে আরএইচ নাল সেল বলে। तो एर आंसर क्या হবে ना, नो आरएच एंटीजन। इसका आंसर जो होगा नो आरएच एंटीजन होगा, आरएच नाल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेस्ट एंटीकोआगुलेंट फॉर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग, ईडीटीए, ट्राइसोडियम साइट्रेट, हेपारिन, डबल ऑक्सैलेट। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए एंटीकोआगुलेंट लेके एक क्वेश्चन में, उसमें इसका आंसर बता दिया गया। तो क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अच्छा ये उल्टा पल्टा चल गया, ये वाला हेपारिन आंसर होगा, এর উত্তর হেপারিন হবে। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে? হুইচ অফ দ্য ফলোইং টেস্ট ইজ ইউজ টু ডিটেক্ট সিফিলিস, সিফিলিসের জন্য আমরা কি টেস্ট করে থাকি? উইডাল টেস্ট, আরএফ ফ্যাক্টর, সিআরপি, ভিডিআরএল। উইডাল টেস্ট আমরা কার জন্য করি না? সালমোনেলা টাইফি আর প্যারাটাইফি এন্টারিক ফিভার দেখার জন্য। আরএফ ফ্যাক্টর কিসের জন্য করে থাকি? आरएफ फैक्टर আমরা করে থাকি कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम लोग आरएफ फैक्टर टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, ये वाला टेस्ट करते हैं। और सीआरपी जे क्या होता है? सीआरपी सी रिएक्टिव, इसका फुल फॉर्म जो होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी का क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट एंटीजन बोला जाता है, सी को बोलता है कार्बोहाइड्रेट ना। यह है पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन, सीआरपी को बोला जाता है एक्यूट फेज प्रोटीन। पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन होता है सीआरपी। वीडीआरएल वेनरेल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी, ये वाला टेस्ट हम लोग सिफिलिस के लिए करते हैं, वीडीआरएल। और क्या क्या करता है? आरपीआर करता है। इसका सिफिलिस के लिए कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? एफटीए एवीएस, इसका सिफिलिस के लिए कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा and serum is
দ্যাট। এক নম্বর অপশনে কি বলছে, প্লাজমা ডাজ নট কন্টেন ফিব্রিনোজেন, প্লাজমা হ্যাজ মোর ভলিউম অফ ওয়াটার, contain fibrinogen, contains mineral। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? কি উত্তর হবে? প্লাজমা। প্লাজমার মধ্যে কি না ফিব্রিনোজেন থাকে, প্লাজমার মধ্যে ফিব্রিনোজেন থাকে। ये डाज नॉट कंटेन फिब्रिनोजेन, এটা सीरम মধ্যে কোনো फिब्रिनोजेन থাকে না, सीरम के अंदर कोई भी फिब्रिनोजेन नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग जब ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद हम लोग सीरम मिलता है, जब क्लॉटिंग होता है ये फिब्रिनोजेन वो यूज कर लेता है, इसके चलते सीरम में कोई फिब्रिनोजेन नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राम स्टेनिंग was introduced by which scientist? Christian Graham, Robert Cook, Louis Pasteur, Alfred Graham। এর কি সঠিক উত্তর কি হবে? ক্রিশ্চিয়ান গ্রাম উত্তর হবে। 18 কি এরপরের কোশ্চেন কি, হুইচ অফ দ্য ফলোইং কেমিক্যাল টেস্ট ইজ ইউজ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন স্ট্যাফাইলোকক্কাস এন্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস? স্ট্যাফাইলোকক্কাস আর স্ট্রেপ্টোকক্কাসের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য কি টেস্ট ইউজ করি আমরা? ক্যাটালেজ টেস্ট, কোয়াগুলেজ টেস্ট, সরি প্রথম অপশন আছে কোয়াগুলেজ টেস্ট, দ্বিতীয় অপশন ক্যাটালেজ টেস্ট, 3 নম্বর অপশন ইউরিয়েজ, 4 নম্বর অপশন কি আছে অক্সিডেজ। তো এই দুটো ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আমরা কি করে থাকি না ক্যাটালেজ টেস্ট করে থাকি। আর কোয়াগুলেজ টেস্ট কিসের জন্য করি না স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস আর কনস মানে কনস কোয়াগুলেজ নেগেটিভ স্ট্যাফাইলোকক্কাস। কে আছে কোয়াগুলেজ নেগেটিভ? স্ট্যাফাইলোকক্কাস এপিডার্মিডিস আর স্ট্যাফাইলোকক্কাস স্যাপ্রোফাইটিকাস, এই দুটোর সাথে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াসের ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আমরা কোয়াগুলেজ টেস্ট করে থাকি। তো এর কি উত্তর হবে? এর উত্তর হবে ক্যাটালেজ টেস্ট উত্তর হবে। এরপর নেক্সট কি কোশ্চেন আছে, which one of the following test is used to differentiate staphylococcus aureus from staphylococcus other staphylococcus species? अभी बता दिया पिछले क्वेश्चन में। इसका क्या आंसर होगा? इसका कोआगुलेज आंसर होगा, कोआगुलेज टेस्ट आंसर होगा, है ना। इसके बाद बोल रहा है which of the following is the most resistance to the sterilization? ये जब पढ़ाते टाइम हम बताया मोस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है स्टेरिलाइजेशन का, ये आंसर जो होगा प्रियॉन्स होगा, प्रियॉन्स। मोस्ट स्टेराइल पार्टिकल होता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है ना, ये एबनॉर्मल प्रोटीन पार्टिकल होता है विदाउट डीएनए, प्रियॉन्स एबनॉर्मल इनफेक्टेड प्रोटीन पार्टिकल्स। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে क्लास का वो था आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू सबको।